Be comfortable in your positions. Remind to yourself your purpose, your motivation, your intent to join these sessions. It is also okay to change it. With growth of our understanding, we can realign our purpose, shift it to our current understanding. One of the objectives of Nididhyasan is that the information we have gathered of Vedantic study, we start aligning our own thoughts in accordance to that, and then base our life automatically on it. It leads to it. I'll repeat this. Remind your purpose and intent why you join these sessions. This is important. It's your free will and your choice that you are executing. It's your life that you have chosen. It is my life that I have chosen. It is my purpose, my intent with which I take these sessions. It is perfectly okay to change those intents as we keep gaining more understanding, or as our mind quietens and our understanding surfaces of a deeper purpose, of a real purpose, closer to that, we can shift to that. The purpose of Nididhyasan, one of them is that the information we have acquired, we are able to align to it. The distance between the information and my current process of thinking, Nididhyasan reduces that distance. And at some point, it becomes one vision. I am not separate from the knowledge I hear. It brings that inward perception immediately. Years ago, one student had come, and incidentally that day the class was on pot space and total space. The person had never heard Vedantic knowledge in this life. They were professionals, working with family, and living a regular life as everyone does. But out of curiosity, they entered the class. And that day, the topic was pot space and total space. Something triggered in the person, a latent memory, as if. And as the class continued on this example, the person completely aligned to it.
and never looked back, kept pursuing Vedantic studies because a latent memory triggered in this lifetime. And they knew that it was something that they have heard and they know about a bit, but they need more knowledge on it. This is the phal of Nididhyasan. Every effort put in to align our current thinking to this Vedantic Shravanam, for which Mananam and Nididhyasanam are the tools we have. This takes us forward. It never leaves us. And it becomes a margdarshak. Even if we are yoga brasht, in this lifetime we do not reach our gantavyam, in case, even then, this Purusharth continues to lead us and it continues in our process of self-growth. Ishvara makes the vyavastha. That the right words will be heard and our Purusharth will continue. So our intent is very important. And if you're not able to form an intent, Shastra says the entire spiritual process and growth is intent-based. A mechanical sitting and a mechanical listening does not yield much result. This is karma, as I have maintained from day one. Mechanical actions don't even create the little fruit that they are intended for. Mechanical actions for a human being are devoid of Purusharth. And so they just are there, immediate fruit, and it's destroyed. Adhyatmic gati is Purusharth based. हमारा मन इंद्रियों से जुड़ के दुनिया और व्यवहार में व्यस्त रहता है. पूर्णता ढूंढता है, सुख ढूंढता है, सुख बनना चाहता है, इसलिए ढूंढता है. सुखी होना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, इसलिए एक बदलाव की स्थिति इच्छा रखता है. आज को बदल के मेरे पुरुषार्थ से कुछ कर लूं, कल और सुखी हो जाऊंगी या हो जाऊंगा. मन हमारा इसी में लगा रहता है. इसके लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है. ये स्वाभाविक वृत्तियां हैं. If we observe our yesterday, except for this little hour or any other that you may have put as Purusharth, with Suryodaya till we sleep,
Take a quick introspection of how you spent your day. I'll be quiet for a moment, few minutes. This is an important aspect of Nididhyasana. From morning to night, observe what all we did during the day. What Purusharth was really there? ये मन तो अपने आप इंद्रियों के साथ जुड़ता है और व्यस्त रहता है. All this does not give आध्यात्मिक गति. ये तो स्पष्ट हो जाना चाहिए. It should be absolutely crystal clear to us that our mechanical mode of life is just a recycle. The day is experienced as I am awake. I do things. I go here, etc. And then I go to sleep. इसमें से अगर कुछ भी ऐसा है जो वर्थवाइल रहा होगा, or it will have a carry forward towards आध्यात्मिक गति, it will be where we put पुरुषार्थ. पुरुषार्थ को समझना बहुत जरूरी है. ये मन जो दुनिया में व्यस्त रहता है अपने आप ही, इस मन को यहां से रीडायरेक्ट करना towards what is permanent, नित्य, real. वो जो हम इंक्लिनेशन रखते हैं और जो डायरेक्शन देते हैं, उसके लिए जो विल लगता है और जो कुछ भी जरूरत है, उसे पुरुषार्थ कहते हैं. Yes, Shastra allows us purusharth for artha kama also, which means I use a conscious will consciously, deliberately, towards certain objectives like earning money or pleasures. I use a will towards living a dharmic life. And I use my will to gain adhyatmic gati towards moksha. अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, इन सब में पुरुषार्थ अनित्य से नित्य की तरफ फल देता है. अर्थ और काम अनित्य, क्षण भर, a little long, maximum this life, no certainty. That born in a rich family you may die rich. ये है अर्थ पुरुषार्थ का आउटकम. काम पुरुषार्थ
gives pleasures, leaves a rasa behind. While it is exhausting itself, अनित्य है, मगर वो रस फिर से हमको उस चेज में लगा देता है. We remain chasing the anitya. रस का स्वभाव है कि वो एक्लेमेटाइज हो जाता है. अगली बार और पुरुषार्थ डालना पड़ता है for that much more pleasure. जीवन निकल जाता है. धर्म पुरुषार्थ नित्य है थोड़ा. It gives a little lasting effect. ये हमें अब परमानेंट से जोड़ना शुरू करता है. धर्म हमारी विवेक बुद्धि को जगाता है, इन्वोक करता है, इग्नाइट करता है. बिना विवेक शक्ति के हम धार्मिक कर्म नहीं कर सकते. पुरुषार्थ से. This starts the ऊर्ध्व गति. और धर्म के पालन करने वालों को प्रकृति के नियम से धर्म ही रक्षा करता है उसकी. अर्थी और कामी, अर्थार्थी और कामी, इनकी रक्षा कोई नहीं करता, खुद करना पड़ता है. So it's a very high state of struggle that a jiva feels. But धर्म के मार्ग पे चलने वाला अब अंदर से थोड़ा शांत होने लगता है. Because अब उसकी व्यवस्था, उसका रक्षण, उसका पोषण प्रकृति के नियम में ईश्वर ने प्रोविजन दे दिया. वो अपना पुरुषार्थ अब प्रकृति के नियम के अलाइन होके लगा रहा है. प्रकृति का नियम क्या है? It will help the jiva towards what it wants. प्रकृति का नियम है. हर जीव को, हर प्राणी को उसके अनुकूल प्रकृति पोषण करती है. मोक्ष पुरुषार्थ ऐसा है जहां सिर्फ पुरुषार्थ ही चल सकता है. What I mean is, all the provision provided by nature and Ishvara can bring us everything possible. पर जो धार्मिक व्यवस्था में भी एक प्रोटेक्शन है, एक सपोर्टिव सिस्टम होता है, नेचर देता है. लाइक अ चाइल्ड गेट्स अ सपोर्ट. मोक्ष पुरुषार्थ इज एंटायरली ह्यूमन बेस्ड. ईश्वर भी कहता है मेरी लक्ष्मण रेखा यहाँ पे लग गई.
I cannot help you in this Purusharth. I can provide everything you need. But ये पुरुषार्थ खुद लगाना पड़ता है. जीवन में इस पुरुषार्थ की गति आध्यात्मिक हो जाती है. आध्यात्मिक means it's not a mysterious word. आत्मा के अनुरूप. Adhi means following. Under. Atma. According to. Atma. Adhi. Atma. Adhyatma. What is conducive for Atma अवस्था? उसमें निष्ठ रहने के लिए. उसमें जो भी मैं जीवन की व्यवस्था चूज करूं. I repeat this statement. Adhyatma is not a mysterious word or a lifestyle. The word itself is descriptive. Atma or Adhi. If you join the words, it will become Adhyatma. Adhi means according to. According to what? Atma. That which helps me to remain established or to get established in Atma, as Atma. A lifestyle that I adopt to enable that. उसी को अध्यात्म कहते हैं और आध्यात्मिक जीवन कहते हैं. I'll repeat again. आध्यात्मिक जीवन मतलब पुरुषार्थ लगाते हैं हम एक जीवन को ऐसे जीने का, अपने जीवन को ऐसे जीने का कि वो मुझे आत्मनिष्ठ की तरफ कंड्यूसिव हो. And you will realize that all our spiritual disciplines and sadhanas become voluntarily based. Automatically, these practices, disciplines, get introduced in our life. We take out time for them in the day. उपदेश सार में भगवान रमना ने इन सब को जो वेदों में फैले हुए हैं, in just a few words, he lists them. इस शरीर से आध्यात्मिक जीवन कैसे जिया जा सकता है? I will not answer this. We know it. ऐसा हम क्या करें एक दिन में कि इस शरीर से हमारे जीवन में आध्यात्मिकता आएगी. हम अपने आध्यात्मिक जीवन का ग्रोथ करेंगे, बढ़ेंगे, युक्त होंगे, जुड़ेंगे. इन प्राण को मैं कहाँ संचलित करूं कि ये मुझे आध्यात्म जीवन देंगे. They will help me towards leading an आध्यात्मिक life. मन को मैं कहाँ लगाऊं जिसको मैं समझूं कि ये आध्यात्मिक जीवन के लिए राइट है, कंड्यूसिव है. जब नहीं समझ में आता,
इसलिए हमारे शास्त्रों में अध्ययन कहा है, श्रवण कहा है। मन को वहां लगाओ, उससे जोड़ो, which is conducive for establishing in your Atma Vidya. In Atma Bodh, there'll be a verse that comes. All sadhanas are in parampara, paramparaya. Indirect means there is only one sadhana which is direct means for moksha. वो ज्ञान साधना है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये ज्ञान योग है। बाकी सब साधनाएं इनडायरेक्ट है, अंग है, लिम्स है। वो भी आवश्यक है जरूर, but they are indirect means. They don't liberate a person. वो मेरे आध्यात्मिक जीवन को दृढ़ बना सकती हैं, मगर मेरे आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य क्या है? Why have I chosen to have an आध्यात्मिक जीवन? Why do I want to lead an आध्यात्मिक life? उसका भी तो प्रयोजन होना चाहिए। दुनिया तो वैलिडेट करती है अर्थ और काम को, मगर ऐसी क्या सोच है मेरे अंदर कि मुझे वो एडिक्वेट नहीं लगती फॉर माई लाइफ, कि मेरे पूरे जीवन में मैं बस इतना ही करके मर जाऊं, कुछ कमा के और कुछ भोग के। और भोग में भी क्या है, बस इंद्रिय भोग ही तो है। आंखों से इधर उधर जा सकती हूँ, कानों से ये वो सुन सकती हूँ, मुंह से ये वो खा सकती हूँ, बोल सकती हूँ, तन को कुछ अलग वैरायटी से ढक सकती हूँ। और क्या करूं भोग में? उसी के लिए अर्थ कमा सकती हूँ, मगर जब खुद की बुद्धि कहने लगे कि ये तो एक पूरे जीवन का प्रयोजन नहीं हो सकता, तो और क्या जोड़ूं इसमें? तो धीरे धीरे जीवन आध्यात्मिक की ओर बढ़ने लगता है। थोड़ा हमारा दूसरे कर्म बनने लगते हैं, थोड़ी सेवा, थोड़ा वॉलंटियरिंग इधर उधर, और लोगों की मदद आउट ऑफ आवर वे, कुछ और जीवन में आने लगता है जो सीधा अर्थ और काम से नहीं जुड़ा। और वो एक अलग मन की शांति देता है, प्रसन्नता लाता है। अपना छोड़ के जब किसी और को अपने पुरुषार्थ से कुछ किया, तो वो मन में एक प्रसन्नता देता है, और वो प्रसन्नता मेरे को आध्यात्मिक जीवन से जोड़ने लगती है। एंड धीरे धीरे we arrive at this point as we are today for most of us. श्रवण से निकल के शुरू में नहीं समझ में आया, लेकिन आने लगा, फिर धीरे धीरे आज ये अवस्था आ गई कि आत्मा अनात्मा विवेक के लिए भी मन तैयार हो जाता है। ये आध्यात्म जीवन है। आत्मा में निष्ठ होने के लिए जो व्यवस्था कंड्यूसिव बनती है, उसे आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। एंड सो इन सनातन धर्म
We have so many ways in which we can live a lifestyle. We adopt a lifestyle which we find conducive for our own adhyatmic growth. आपकी बुद्धि में बहुत स्पष्टता आ रही होगी शायद. So many variations of spiritual practices that we find everywhere. In Atma Bodh, the verse will conclude with an example. Just as for cooking, what is the direct means and indirect means? Indirect is a lot of things that we do. We buy vegetables, we cut them, wash them, etc., etc. We prepare a vessel, but without fire, can cooking proceed? Will it conclude? If there is no fire, there is no cooking. So all your sadhanas that you were depending on, they only turned out to be aids. Sure enough, without them also, you can't cook. But the relation between both kinds of sadhanas is direct and indirect. दोनों साधन हैं, दोनों आवश्यक हैं. मगर डायरेक्ट क्या है? Which means I may include all the spiritual practices in my life, like japa, vrata, etc. मगर बिना आत्मज्ञान के मोक्ष नहीं. And so, establish our own intent. We can define it, redefine it, change it according to our understanding. The idea is, as per our own capacity, we choose to align with it. हमें तो बस एक जीवन में व्यवस्था बनानी है जिसमें ये फल कंटिन्यूटी के जैसे चले. जब तक आत्मनिष्ठ नहीं होते, हमारे पास आश्रय नहीं है कोई और, किसी प्राणी के पास नहीं है. Atma Vidya is the direct means and the only means. Kevala. The verse will say. केवल आत्मज्ञान ही है. तो फिर आध्यात्मिक जीवन भी जरूरी है और आत्मज्ञान बहुत जरूरी है. So who am I? As we take a deep breath, take a deep breath. Who's breathing? Continuing from yesterday. कौन है ये जो सांस ले रहा है? अगर आप कहें कि मैं हूं, if you reflected a bit, the question is asked,
Is this a right question? क्या ये स्टेटमेंट सही है? मैं सांस ले रही हूं। I will not give an answer. We all have our own answers as per our present understanding. Just keep the answer open. मैं सांस ले रही हूं। क्या ये कंक्लूजन सही है? I just have to introduce the question. Watch your breath. Take a deep breath as need be. उसके चलन को बस देखो। Eyes closed. ये जो जान रहा है कि मैं सांस ले रही हूं, ले रहा हूं, कौन जान रहा है इसको? आप अगर देखो कि मैं सांस ले रही हूं, that knowledge is not helpful to me. It does not validate कि आप मेरे को पहले बोलो कि हाँ दीप्ति आप तो सांस ले रहे हो, और फिर मैं कहूँ हाँ मैं तो सांस ले रही हूँ, आप तो ठीक कह रहे हो। ऐसा तो हम नहीं करते। मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ता कि आप जाने कि ना जाने कि मैं सांस ले रही हूँ। मुझे तो पता ही नहीं कि आप जानते हैं कि नहीं जानते। मुझे तो ये पता है कि मैं जानती हूँ कि मैं सांस ले रही हूँ, इंडिपेंडेंट ऑफ योर नोइंग। तो ये मैं सांस ले रही हूँ, इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमने पहले अपने आप से प्रश्न किया, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? बस इतना ही पूछना है खुद से। और अगर जवाब आए कि हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ दो। कल फिर यही प्रश्न पूछो, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? अगर हमारा वेदांत का श्रवण सही है और हमारा अपना पुरुषार्थ लगता है उसको समझने में, ठीक से समझने में, हम अपना अध्ययन कर रहे हैं, तो कभी ना कभी जो शास्त्र ने ये थॉट्स इंट्रोड्यूस कर दिए हमारे मन में, जो विचार आ गए हमारे मन में, वो विचार हमारे आज के कंक्लूजन से कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि मैं सांस ले रही हूं, मगर शास्त्र में, श्रवण में, अगर हमारा भाग्य रहा है तो हमने तो बहुत व्याख्यान डिटेल से सुने होंगे। हर एंगल से हमें शास्त्र समझाता है, वो कोई एंगल नहीं छोड़ता परसेप्शन का, कि कौन सा एंगल किस जीव को समझ में आ जाएगा, वो हर एंगल से समझाता है। हमारे कान में वो सब शब्द पढ़ चुके होंगे, and they all would have generated thoughts. भूल भी गए होंगे तो एक तो पकड़ में रहा होगा, और वो पकड़ने वाला थॉट सिर्फ मेरे लिए वैलिड है। मेरा पकड़ा हुआ थॉट जरूरी नहीं कि किसी और के लिए वैलिड हो।
हर कोई जो अपने लिए पकड़ता है वो उसी के लिए जरूरी होता है, और अपने नोट्स एक्सचेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसी से हमारी परसेप्शन फुल हो जाएगी इफ वी कीप फॉलोइंग इट। यही है वो स्वेटर का पहला थ्रेड, जिसको हाथ में पकड़ा हुआ पूरा स्वेटर खुल जाएगा, उसका नाम रूप लीन हो जाएगा इन दैट बॉल ऑफ वूल। इन द सेम वे, मैं हूं, बस एक इंट्रोड्यूस करना है, ओपन माइंड, इस स्टेटमेंट को देखना है, और शास्त्र से सुने हुए सब शब्द जो काउंटर होके खड़े होते हैं हमारे ही मन में, अब इनकी अलाइनमेंट शुरू होती है। शास्त्र का विचार जो कहा, मुझे कितना समझ में आया, क्योंकि मेरी खुद की बुद्धि तो अभी भी कह रही है मैं ही सांस ले रही हूँ, और कक्षा के बाद कक्षा ओवर द इयर्स, एक टीचर, दो टीचर, बहुत टीचर बदल बदल के, वेदांत का तो हर टीचर वही बोलेगा, हर आचार्य वही कहेगा। अगर वो परंपरागत आचार्य है तो परंपरागत आचार्य परंपरा से भिन्न होके अध्ययन नहीं कराते, क्योंकि करा ही नहीं सकते, वो जानते हैं, वो तो मार्ग भ्रष्ट हो जाता है। वो तो परंपरा में जो मार्गदर्शक है, जो भाष्यम के थ्रू दिखते हैं, तो बहुत सुना होगा हमने तो। क्या मैं सांस ले रही हूँ? हमने इस वाक्य को खोल दिया मनन के लिए, अपने अनुभव से देखना है हमको। हमारे ही मन में श्रवण हो चुका है, हमारे पास थॉट्स हैं, आचार्यों से सुने हुए वो जवाब है। मगर अगर मेरा कंक्लूजन ये रहा कि मैं सांस ले रही हूं, तो अब ये परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष करना है। सो वॉच योर ब्रेथ। Let's leave the question for a minute and enjoy the state of our being, which is also the purpose of these dhyanam. हमें कहाँ बहुत कष्ट करना है अपनी बुद्धि को। ये जो अपने ही बीइंग का एक आनंद है शांत, ये अनुभव भी एक दिन विवेक से उठ बैठेगा। अपना ही ये जो आनंद का स्वभाव है, अभी जो अनुभव हो रहा है, शांत मन, detached from everything, not really thinking of anything in particular, and yet there could be thoughts as per my yesterday. But if I have followed the session properly, for most of us, they would be in the background now. हमारा अटेंशन ले ही नहीं रहे वो थॉट्स। हमारा अटेंशन तो अब इन थॉट्स पे है जो हमारे कान में पड़ रहे हैं, और ये तो मुझे शांति की तरफ ला रहे हैं।
ये जो शांति है, ये जो अनुभव है, ये भी एक विवेक के जैसे उठेगा कभी ना कभी, और हमारी हर अनात्म विचार को काटेगा। शांत हो हम। मुझे बनना नहीं पड़ा, बस ये जो अशांति मन में रहती है उससे ध्यान हटा दिया, उसको रिजॉल्व कर दिया, जैसे नींद में करते हैं वैसे हम ध्यान में भी करते हैं। फर्क ये है, वहां ऑटोमेटिक है, प्रकृति के नियम में है। यहाँ पुरुषार्थ है, डेलिबरेट है। फल इस डेलिबरेशन का मिलता है। यही ज्ञान योग है। दुर्लभ इसलिए है क्योंकि इसके पहले बहुत तपस्या होती है जीव की। और इसके आगे भी दुर्लभ ही रहती है। Krishna has told us one amongst many generations knows me। मगर क्या हम पुरुषार्थ छोड़ देंगे? वो तो स्टेटमेंट ऑफ एनकरेजमेंट है। ये दुर्लभ है। ये दुर्लभ है, ये कोई ओपिनियन नहीं है हमारा। निधि ध्यासन तक जीव आते आते बहुत तपस्या की है। बिना तपस्या के यहाँ तक जीव नहीं पहुंचता। हम सब पे वो ईश्वर का अनुग्रह है that our efforts remained continuous to understand what Vedanta was telling us. That is ईश्वर अनुग्रह। भटकने के मार्ग बहुत हैं, सही मार्ग एक ही है। To say there are many roads that lead to Rome is incorrect। रोम तक तो पहुंच जाएंगे, आत्मा पे तो एक ही मार्ग आता है, ज्ञान मार्ग। Enjoy this breath। जब तक ये चल रहा है, इस पुरुषार्थ का अवसर है हमारे पास। Remember your own Ishta Devata, invoke it, bring it in front of your mental eyes। उसको व्याप्त कर दो, उसको विश्व रूप बना दो।
उसको छोटा आइडल में मत रखो, व्याप्त कर दो। उसकी आभा को पूरे विश्व में फैला दो, असीमित कर दो, थ्रू स्पेस, थ्रू गैलेक्सीज, up to wherever my intellect can comprehend, and beyond that, what it cannot comprehend, I leave it on Anuman. यही सत्य है, ये ईश्वर ही ब्रह्मन है। नाम रूप तो मैंने आकार दिया है मेरी बुद्धि में प्रतिष्ठित होने के लिए, मगर ये जो पूरी आकाश में फैला है, इसके बियॉन्ड मेरी बुद्धि जहां नहीं जा रही, ये वहां भी है। इसको प्रणाम। और हमारा ये विचार, क्या मैं सांस ले रही हूं, इसको हम इन्हीं को ऑफर कर देते हैं, अर्पण कर देते। Enjoy the bhav of Ishvara darshan and your Jiva Bhakti. ये सब एक है, वो गंतव्य है समझ का। मन में जो विचार चल रहा हो, जब चल रहा हो, चलने दो। और अगर मन भटक रहा है तो सांस पे ले आओ। Visualize your own form meditating now. Remember that the Purusharth is augmentive, cumulative. एक दिन से नहीं होता, मगर हर दिन करने से एक दिन हो जाता है। Pranam once again to our Ishwar. I will conclude by chanting Om Ban. There is no hurry after that. Take your time to open your eyes and wriggle your fingers.
शुभ दिनम.